related to the above topics? Yes? If not, then we will continue further. Okay? And if you find any difficulty, or if you get to know that we are just getting out from that particular topic, I'm not able to understand that particular word or particular topic, let me know. We will repeat that topic although. Fine? So let's continue with the sixth unit that we have. So not sixth unit, sixth exercise, that is need statements under reflect. Okay, let's see what is the need statements here. क्या एक्सरसाइज है नीड स्टेटमेंट? जैसे हमारे पास पहले प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड था, एनी हाउ उसका मीनिंग थोड़ा बहुत क्लियर था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं नीड स्टेटमेंट्स का है क्या मीनिंग. ओके, so see, when you are trying to solve a problem, it can be tempting to slip out the technical discussion that focuses on feature and function. For example, what happens, let's suppose we are just trying to resolve the issue of cab facility. Sometimes whenever we are doing discussion, we just slip out from the discussion over technical features. Okay, so that is just said here that whenever we are discussing anything, we sometimes slip out from the technical discussion. So if you get caught up in the details too early, you risk inadvertently solving the wrong problem. Yes, of course. If you just try to get up it, then you will get to know that you are solving a problem in a wrong manner. Okay? क्या हो सकता है, लाइक अगर इफ यू गेट टू नो कि हाँ जी आप लोग जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो उसमें टेक्निकल पार्ट तो कवर ही नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है आप लोगों के पास प्रॉब्लम सक्कर हो सकती है. तो हमें वापस रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, हमें रीफ्रेम करनी पड़ेगी पूरा डिजाइन और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा. So that is just said here, reframe your thinking by writing need statement and answer the question, what does our user actually need? तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे थिंक पूरा ही करेंगे, पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से नहीं. हम लोग एक पॉइंट ऐड ऑन कर देंगे अपना जो भी फ्रेम्स है, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या जो भी हम लोग फर्दर अपने डॉक्यूमेंटेशन रखें, उसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, नीड स्टेटमेंट. आई कैन से एक पर्टिकुलर छोटा सा मॉड्यूल ऐड कर देंगे नीड स्टेटमेंट, और उस नीड स्टेटमेंट्स के पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम टेक्निकल डिस्कशन के पॉइंट्स इंसर्ट कर देंगे. फाइन. तो ये सब कुछ होता है हमारे नीड स्टेटमेंट्स में. लेट्स सी कि नीड स्टेटमेंट्स करते क्या है. सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कम प्रिपेयर्ड. Need statements are only as reliable as the data you have, so make sure you have defensible data based on real observations. For example, from an interview or contextual inquiry, when you can feel free to invite users or sponsor users to participate. Means what is just said here, कि need statements कैसे होते हैं? They are reliable. Okay, so make sure जिस भी डेटा पे आप need statements prepare कर रहे हो वो अप टू द पॉइंट हो, और आप उस नीड स्टेटमेंट्स के लिए सबको इनवाइट करो, यूजर्स को भी, आपके स्पॉन्सर्स को भी, मीन शेयर होल्डर्स को भी, आपके फाइनेंसर्स को भी, आपके स्टेक होल्डर्स को भी, आपके टेस्टर्स को भी, आप सबको इनवाइट करोगे. ये है फर्स्ट स्टेप में. सेकंड है सेटअप द एक्टिविटी. फ्रेम द एक्टिविटी बाय राइटिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट. इसमें हम कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, प्रॉम्प्ट्स का यूज करके हम लोग फर्दर अपने स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे. तो क्या होगा, our user needs a way to address this need so that they benefit in this way. Means what is actually said here, needs to way to so that they can benefit the users way. Like हमें जिस भी चीज को पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है जो कि यूजर के आउटपुट को एक एनहांस कर सकते हैं या फिर उसके बेनिफिट के लिए इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे पॉइंट. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद है अनकवर द नीड्स. Now you can see here that developers need a way to address this need so that they can benefit in this way. Means developers जरूरी नहीं वैसे हमेशा developers का केस हो, it can be of anyone. Fine. तो जो भी आप लोगों के टीम मेंबर्स हैं, जो भी आप लोगों के नीड स्टेटमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, they all are required to address their points. They address their point of view related to the concept. Next we have uncover needs. Have everyone diverge around the needs and benefits they believe they are solving for to fill out the prompt. Stay away from writing features as best as you can. Okay, so means what we have to do actually, हमें ये भी चेक करना है that जो भी have everyone diverge around the needs and benefits means सबको हर एक तरह के benefits और needs पता है नहीं कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रियल मोटिव क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसमें नीड किस किस चीज की है, उसकी रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है.
Clear? Then we have stay away from writing features as best as you can. Means what you have to do, at least words को अगर समझोगे properly, so first of all let's cover this line also. If an idea is expressed in the terms of machine, dashboard or click call, login in export or so on, that is a clue, that is it's a feature not a user need. Let's suppose हम लोग कुछ documentation जो कर रहे हैं अभी यहाँ पे, उसमें हम कुछ ऐसे लिख देते हैं क्लिक इन, लॉग इन, एक्सपोर्ट, ओके, डैशबोर्ड, लॉग आउट, कुछ ऐसे वर्ड्स। तो ये सारे यूजर नीड नहीं है, ये क्या है, ये फीचर्स है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमेशा हमें फीचर्स प्रोवाइड करने होते हैं। जब भी हम लोग अपने पॉइंट्स को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद जब अनकवर नीड्स कंसेप्ट आता है, तो अनकवर नीड्स में हमें यूजर नीड ध्यान रखनी पड़ती है कि यूजर की नीड क्या है। हमें फीचर्स पे फोकस नहीं करना, हमें यूजर की नीड पे फोकस करना है, यूजर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। वंस वी आर डन विद द यूजर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू कंटिन्यू विद द क्लस्टर्स। सेम वही स्टेप आ जाएगा, आप लोगों को क्लस्टर फॉर्मेशन करनी है, आपको आइडियाज और आइडियाज पर डिस्कशन करनी है जो कि आपको सिमिलर लग रहे हैं। As we coverage, try writing a few need statements that represent key elements. Okay, means once you are done with the cluster part, या फिर आपको कुछ ऐसे points मिल जाते हैं जो cluster form कर रहे हैं, so try to do one thing with them. Try writing a few need statements. उनसे related कुछ statements लिखने की कोशिश करो जो कि जो as a key represent कर सको आप उनके लिए, ठीक है। Make sure you use the same format as the original prompt. जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसा ही यूज करना। This is your prompt, this is your documents, or I can say this is a sticky notes जिसके ऊपर आपने फर्दर क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है। तो क्लस्टरिंग करने के बाद आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा लाइक वर्क टू बी डन, मे फास्टर, डेस्कटॉप प्लस डेवलपमेंट। ओके, तो आप लोग कुछ ऐसे क्लस्टरिंग कर लोगे और ये आपको यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। नीड स्टेटमेंट का, नीड स्टेटमेंट में बस इतना ही है कि हम लोगों ने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पॉइंट से रिलेटेड एड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को फर्दर लेटर एड ऑन कर लेते हैं हम अपने सॉल्यूशन में। क्लियर है? हाँ जी, नीड स्टेटमेंट्स क्लियर है सबको? टेल मी फास्ट, नीड स्टेटमेंट्स क्लियर है या नहीं? तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर नीड स्टेटमेंट्स। हम लोग यहाँ पे बैक टिप्स देख लेते हैं। Uber need statements. After clustering several ideas together, try writing one big Uber need statement that represent the entire group. Of course, अगर आप लोग कैब फैसिलिटी वाले पे काम कर रहे हो तो वहीं पे आप लोग Uber का एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो उसके भी आप लेटर ऑन क्या उसकी नीड है, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो। क्लियर? Next we have people aren't machines. If an idea is expressed in the terms of machine like dashboard, click, login, export and so on, that's a clue, it's actually a feature. Okay? Like अगर आप कहीं पे भी मेंशन करते हो कि हाँ जी एक आइडिया दिया आपने कि वहां पे लॉगिन करेंगे, तो वो लॉगिन आपका आइडिया नहीं है, वो लॉगिन आपने एक फीचर दिया है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि इफ यू रिप्रेजेंट एनी वर्ड्स लाइक डैशबोर्ड, क्लिक, लॉगिन, एक्सपोर्ट एंड सो ऑन, दे आर नॉट योर आइडियाज, दे आर योर क्लूज। ओके, इट्स एक्चुअली अ फीचर, ठीक है। वो एक आइडिया नहीं है, वो क्या है, एक फीचर है जो फीचर की तरह काम करेगा। Recast the ideas in human terms so what the technology allow the user to accomplish. So what you have to do, आप लोगों को फिर से उसकी रिकास्टिंग करनी पड़ेगी किस फॉर्मेट में, ह्यूमन टर्म्स के फॉर्मेट में, प्रॉपर नॉर्मल इंग्लिश में, ओके, नॉर्मल स्लैंग में, और फर्दर वो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको अकम्प्लिश करोगे। क्लियर? तो ये ना हमारे पास यहाँ पे अभी तक रिफ्लेक्ट में। क्लियर? ऑब्जर्व हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद मेक। So let's see what we have in a make. This is the last sub point. अगर मैं make की बात करूं, the only way to see an outcome is to make one even if the idea isn't fully baked yet. Let me repeat. The only way to see an outcome is to make one or even if the idea isn't fully baked yet. Means अगर आपको good outcome चाहिए, so you should have at least one or two ideas. बेशक अगर आपके आइडियाज पूरे कंप्लीट ना है तो भी आप लोगों के पास एटलीस्ट एक या दो आइडियाज होने चाहिए। क्लियर? फाइन। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर whatever the task you have, whatever solution you have, if you want to outcome it, you want to overcome it, or you want to clear that particular problem, okay, so what you have to do
you have to must make 1 or 2 ideas. आपको 1 या 2 आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे. फाइन. Now, rapid or low fidelity prototyping allow us to stimulate ideas and test hypothesis quickly and cheaply. मतलब क्या होता है, अगर हम रैपिड लो फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग अलाउ, ये सारे फंक्शनलिटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं. हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, लो फिडिलिटी करते हैं, यहाँ पर हम प्रोटोटाइप फटाफट से डिजाइन कर देते हैं. ये सब चीजें क्या करती है हमें, ये सारी चीजें हमें अलाउ करेगी टू सिमुलेट आइडियाज एंड टेस्ट हाइपोथेसिस क्विकली एंड चीपली. मतलब ये सारे टेक्निक्स का हम यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को, हम अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. फाइन. The results or the solution that are robust, effective and better tested. क्या बोला है कि आपका जो सॉल्यूशन है इट मस्ट बी बेटर और इट मस्ट बी रोबस्ट. फाइन. बेटर होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए और हर एक फील्ड में इफेक्टिव होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव, वी ऑल कॉट इन एनालिसिस पैरालिसिस समटाइम्स. It is tempting to put off making because we aren't confident and we aren't confident we have enough understanding. Sometimes we are just afraid to share ideas before they are fully baked. कई बार क्या होता है कि हम लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है एनालिसिस पैरालिसिस में. एनालिसिस पैरालिसिस में क्या होता है एक्चुअली कि हम लोग अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते और हम दूसरे की बातों में आके हम अपना जितना काम हम लोगों ने किया होता है, चाहे वो सही काम किया हो, हम वो काम भी खराब कर देते हैं. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर हमारे आइडियाज फुली बेक्ड नहीं है, स्टिल समटाइम्स इन कमिंग विद अदर कॉन्टेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, हम अपने आप को इफेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे द ओनली वे टू सी एन आउटकम इज टू मेक वन. फाइन. बट लास्ट में क्या होगा, हमें यही आउटकम मिलेगी. वी शुड गो विद द मेक वन. मेक वन में हम करेंगे क्या, हम लोग अपने आइडियाज की जनरेशन करेंगे, मेकिंग करेंगे. लेट्स सी हाउ. मेकिंग इन फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, giving you the chance to try out new ideas and see them effect in the real world. Like आप लोगों के जो आइडियाज हैं, आप अपने आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करोगे. ठीक है. आपके आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होने चाहिए, आपके आइडियाज न्यू होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए. क्लियर. द अर्लियर यू मेक द फास्टर यू लिव. ऑफ कोर्स अगर मैंने आज से काम शुरू करना है और मैं अपने काम को पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो जरूरी है मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. रेदर देन अगर मैंने काम आज स्टार्ट करना है और मैं आज ही शुरू कर दूं उसको, फाइन, तो मुझे कोई फायदा नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिन बाद क्लासेस पढ़ाना शुरू करनी है, तो मैं आज से स्टडी करना शुरू कर दूंगी, तो मेरे लिए फायदा है. अगर मैंने 10 दिन बाद क्लासेस शुरू करनी है और 10वें ही दिन शुरू करूंगी सब कुछ पढ़ाना, उसको गो थ्रू करना, तो वो मेरे लिए भी इफेक्टिव नहीं होगा. फाइन. तो सेम चीज यहाँ बोली गई है. नेक्स्ट है समन द क्यूरियोसिटी टू ट्राई आउट एक्सप्लोर आइडियाज. Have the audacity to put your ideas into the world means what we have to do. We must be have curious. Okay, we should be curious. Summon the curiosity to try out or explore ideas. जो आपके ideas explore नहीं हुए हैं अभी तक, you must have any kind of curiosity और उन ideas को explore करने की कोशिश करोगे आप. ठीक है. Have the audacity to put out your ideas into the world means हमें करने क्या है कि अपने जो आइडियाज है फिर ऑडेसिटी का यूज करके वर्ल्ड में लेकर जाने हैं. एंड यू माइट बी रॉन्ग एंड देयर नथिंग रॉन्ग लाइक दैट. हो सकता है आपके आइडियाज गलत भी हो सकता है आपके आइडियाज गलत भी ना हो. ठीक है. ये सब चीजें. नेक्स्ट है व्हेन यू गो टू मेक आस्क अदर्स टू पार्टिसिपेट एंड बिल्ड ऑल योर आइडियाज टुगेदर. कोलैबोरेटिंग विद द टीम मेंबर्स इज ऑफन वेयर द बेस्ट आइडियाज आर बॉर्न. राइट. मतलब बोला क्या है यहाँ पे, that you should be work together in a group. Once you're working in a group, once you're working in a team members, you are going to have best ideas are as a result. Okay, means best ideas of course वहाँ पे generate होंगे ही होंगे. Next we have explore possibilities. Second point के बाद आपके make में आपने जब अपने make की introduction पूरी खत्म कर ली, इसमें आपके पास point आता है explore possibilities. Explore possibilities में यही है कि don't wait until the idea is perfect. It won't happen. Think with your friends to uncover the new ideas in the real time. Fine. हमें करना क्या है कि हमें आइडियाज जनरेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम. ऐसे नहीं कि आज हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑफ अराउंड 2000 में वो कोई प्रोग्राम चलता था, 2000 में कोई फंक्शनैलिटी चलती थी, उससे आइडियाज रिलेट कर रहे हैं. नो, अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड, रियल टाइम, यू हैव टू कंटिन्यू विद योर थॉट्स और आइडियाज जनरेशन. फाइंड आउट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट. हमें ये भी चेक करना होगा कि हमें जो अपने
आई कैन से आइडियाज जनरेट किए हैं, कितने काम करेंगे कितने काम नहीं करेंगे. टेक एडवांटेज ऑफ हैप्पी एक्सीडेंट्स when you are run out of ideas. Invite others to respond, remix and transform what you have made. You never know what you might learn from others. Means हमें क्या करना है, जो भी particular condition आए, we should try to respond good in that particular case. We should try to enhance more and more knowledge from them. Fine. तो ये है explore possibilities में. Next है हमारे पास communicate ideas. Communicate ideas की अगर मैं बात करूँ तो let's see क्या है हमारे पास. We are seeing the same thing. The picture is worth 1,000 words. So don't let people your ideas. Show them. Get your ideas across by making small things that expresses your intent. Come up with the story and show them why it matters. Means हमें करना क्या है communicate ideas में. See, we have to tell the people about the ideas. जो उनके ideas हैं, जिनके solutions हैं, उन solutions को भी resolve करना है, उनके ideas को भी go through करना है. One more thing. उनके आइडियाज के ऊपर हम लोग क्या बेटर और चीज अप्लाई कर सकते हैं तो उनको वो भी बताना है. ठीक है. नाउ वंस यू आर डन विद दैट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रोटोटाइप कंसेप्ट. प्रोटोटाइप कंसेप्ट में आता है डेवलपमेंट. आपने अपना पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए देना है. ठीक है. एंड लास्ट वी हैव ड्राइव आउटकम. वंस यू हैव कमिटेड टू द आइडिया, टर्न योर इंटेंट इनटू आउटकम. फाइन. जब हम लोग अपने आइडिया जनरेशन के साथ हो चुके हैं, प्रोटोटाइप कंसेप्ट कर चुके हैं, तो जो हमारे इंटेंट्स हैं, अब उन इंटेंट्स को हम आउटकम में जनरेट करेंगे. क्लियर? यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग टू गेट मूविंग. हमें सब कुछ पता नहीं करने की जरूरत है. लिसन, लर्न, कोर्स करेक्ट एज यू वर्क आउट इन द डिटेल्स. जैसे कि हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेप पे ही हैं, तो वी शुड नॉट गो कंटिन्यू विद द लिसन, लर्न एंड कोर्स करेक्ट. ठीक है. हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है. एंड आफ्टर दैट वी हैव रिमेंबर एवरीथिंग इज अ प्रोटोटाइप इवन इन मार्केट सॉल्यूशन. सो मीन्स जो भी आप लोग के पास सॉल्यूशन है, चाहे मार्केट की बात कर रहे हो, चाहे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आप खुद भी रिजॉल्व कर रहे हो, वो हमेशा एक प्रोटोटाइप है. ये मैंने एक दिन भी आप लोगों को रिपीट किया था दैट एवरीथिंग इज अ प्रोटोटाइप. हर एक चीज प्रोटोटाइप है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इस चीज का ध्यान रखना. वाई वी कॉल इट एज अ प्रोटोटाइप? बिकॉज ना उसका कोई मार्केट सॉल्यूशन है, ना हो सकता है इसका कोई ह्यूमन सॉल्यूशन है प्रॉपरली. तो हो सकता है फेल भी हो सकती है या फिर फर्दर वर्क कर भी सकते हैं पर्टिकुलर मशीन. क्लियर? तो ये था ड्राइव आउटकम्स में. अब इसकी एक एक्सरसाइज है हमारे पास स्टोरी बोर्ड. फाइन. तो मैं एक बार एक स्टोरी बोर्ड डिस्कस कर लेती हूँ. स्टोरी बोर्ड में क्या क्या है. देन वी आर जस्ट डन विद दिस चैप्टर. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द स्टोरी बोर्ड स्टूडेंट्स. सी you can use storyboards once you know the problem you are trying to solve and for whom. हमें जब प्रॉब्लम पता होती है और हम किसके साथ सॉल्यूशन उसका रिजॉल्व करने वाले हैं, then in that case we can use storyboards. Note that storyboarding is not the same as wireframing. Means storyboarding आपके बाकी सब कंसेप्ट से अलग है. ठीक है. जितने भी अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज की है एज ए सिनेरियो, एम्पैथी, उन सब से अलग है storyboard. Fine. Instead, you are using storyboards to create a new fidelity narrative that focuses on the people and the actions, thoughts, goals, emotions, and relationships. While you can include user interface as props in your story and avoid drawing too many screens. क्या करने की कोशिश है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं दैट हमें नोट करना है कि स्टोरी बोर्डिंग इट इजंट लाइक दिस वायर फ्रेमिंग. वो बाकी सब की तरह नहीं है. ठीक है. Instead, you are storyboard to create a low fidelity narrative that focus on people and their actions. फाइन. हमें मेनली किस किस चीज पे काम करना है? अपने एक्शंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने गोल्स पे, अपने इमोशंस पे और अपने रिलेशनशिप्स में. तो स्टोरी बोर्ड में क्या आता है, अगर आप लोग किसी चीज में लैग कर भी गए हो, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट और वो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो यू कैन गो विद योर स्टोरी बोर्ड. फाइन. ऑफकोर्स स्टोरी बोर्ड से आपके पास कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिलेगा. ठीक है. Then we have, while you can include story interfaces as props in your story, avoid drawing too many screens. क्या करने की बात है यहाँ पे कि आप जो भी इंटरफेसेस बना रहे हो उसे अवॉइड करने की कोशिश करना बहुत ज्यादा स्क्रीन्स पे. लाइक अगर मैं एक बात करूँ, लेट्स सपोज मैंने ये एक एज ओपन किया, वही मैंने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ या फिर 3 बोलते हैं 15 टैब्स खोलिए, 15 टैब्स में सेम ही कंटेंट ओपन किया है, तो क्या होगा? वो तो वेस्टेज है. ठीक है. इट्स टोटली वेस्टेज फॉर मी.
सो दैट थिंग इज जस्ट सेड है कि आप लोग अपने वेस्टेज मत करवाओ यहाँ पे। आपको जितनी स्पेस है, जितना आपको कंटेंट है, सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर स्पेस आप ऑक्यूपाई करो। फाइन। अब इसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन। स्टार्ट विद द स्टोरी। आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर, सेटिंग एंड अ प्लॉट। द पिक सीन्स दैट शो द प्लॉट डेवलपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे अपना कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी आपका कैरेक्टर क्या है, जो भी आपके पास सेटिंग है, तीन चीजें सेम होती है, कैरेक्टर, सेटिंग और प्लॉट। तो आप लोगों को यहाँ से हर चीज फेच करनी है। कैरेक्टर में क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, सेटिंग में क्या सेटिंग का सेटअप दिया गया है, प्लॉट है, प्लॉट के अंदर क्या सेटअप दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द पिक सीन्स दैट शो द प्लॉट डेवलपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यू हैव टू पिक वन बाय वन। सबसे पहले जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जिस वे में आप लोगों के आप लोगों के पास ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको लग रहा है कैरेक्टर आएगा तो कैरेक्टर पिक करो। देन यू थिंक आपके पास प्लॉट आएगा तो प्लॉट को पिक करो। देन यू थिंक आपके पास सेटिंग आएगा तो सेटिंग को पिक करो। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेट योर स्टोरी। अब स्टोरी आपने पिक तो कर ली, अब इलिस्ट्रेट करना है। ट्राई थिंकिंग ऑफ योर स्टोरी बोर्ड इन लाइक अ कॉमिक स्ट्रिप। मीन्स आप जब भी अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू रिजॉल्व देम लाइक अ कॉमिक, कि आप एक कॉमिक पढ़ रहे हो और एक कॉमिक की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कंबाइन क्विक स्केचेस विद स्पीच एंड थॉट बबल्स, एक्शन बर्स्ट, कैप्शंस एंड नरेशंस। मीन्स आपके पास जो भी कंटेंट है, आप लोगों के पास स्पीच है, वट यू हैव, आप क्या करो, उन सबको क्विकली कंबाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, एक स्पीच में कन्वर्ट करो सारा, और वहीं पे आपके पास जितने भी बर्स्ट है, आपके बबल्स है या कैप्शंस है या नरेशंस है, जो भी आप लोगों ने यूज की है, ठीक है, ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस, उन सबको कंबाइन कर दो। क्लियर, जैसे यहाँ पे किया गया है। जैसे यहाँ पे किया गया, सबको कंबाइन कर दिया। देखो राफा जर्नी, राफा याद है हम लोगों ने एम्पैथी मैप में किया था, वही चीज सॉल्यूशन चलता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो सिमिलरली आप लोगों को भी कंबाइन करना है। क्लियर है इतना? इसे एक बार गो थ्रू करोगे ना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वंस यू आर डन विद द सेकंड स्टेप, लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वन, दैट इज प्ले बैक एंड डिस्कस। अब क्या करना है प्ले बैक एंड डिस्कस में, आप लोगों ने जो स्टोरी बनाई है उस स्टोरी को आपको अपने टीम के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों को अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है, और आपको जो भी बच्चे मेंबर्स हैं उन सबको भी रिमाइंडर डालना है। रिमाइंडर ऑफ एवरीवन दैट गोल इज नॉट टू जज ड्राइंग एबिलिटी बट टू कम्युनिकेट द आइडिया इन डिटेल। मीन्स आपको सबको रिमाइंडर डालना है कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट था, जो भी प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, लेट्स ट्राई टू डू कम्युनिकेशन विद इट। तो एग्जीक्यूशन या कम्युनिकेशन या टेस्टिंग बोलो तो वहीं पे आप लोगों की विद इन द टीम ही हो जाएगी। फाइन, इसके कुछ बैक टिप्स है, ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्ट एंड मेक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेक क्लियर है सबको? किसी को भी मेक में प्रॉब्लम है देन लेट मी नो। Yes, anyone having any issue in the make? We are done with our these topics. Okay. अगर अभी तक किसी को कोई डाउट है इन टॉपिक्स में, then you can ask me. Study of these topics, आप एक दूसरे से रिलेट